So hello everybody, welcome to Bio Library, and we'll resume this chapter 6 of T.A. Brown, and we've studied till now about the basics of this cloning from this book. And basically your chapter 1 to 9 deals with the basics of cloning, as to it prepares you in a sense that you get to know the basic idea of what cloning is, what vectors are. But as we may move successively to respective chapters after, beyond this chapter 9, you'll get to know what you actually do in a laboratory. So do one thing, just learn step by step with me. And till now I am assuming that you people have gone through chapter till chapter number 5, because I'm getting request on uploading these subsequent units of T.A. Brown. So let's start in the same direction with the chapter 6, which is dealing with your cloning vectors for E. coli. So what are the cloning vectors which are required for E. coli? So what all we will study in this chapter is, first, cloning vector based on E. coli plasmid, as in आप E. coli plasmid से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए या फिर E. coli को ही मॉडिफाई करके उसका ही प्लाज्मिड आइसोलेट करके क्या क्या यूज़ कर सकते हो. ओके, ऑल्सो डू कॉमेंट डाउन that which language you are more comfortable in. I am taking the example that I should use bilingual, in a sense that people have problem in deciphering both. Some have problem in English, so some have problem in Hindi. So the thing is, in both the languages, be it if I use, like, if I'll become monolingual, if I'll use completely English, then for some students it'll be very difficult to actually know what I'm saying, to actually get a hint of what I'm saying. As in, say for example, मैं इंग्लिश में कुछ कह रही हूँ and they are thinking that उनके लेवल पे वो क्या मीनिंग डिसाइफर कर रहे हैं. सो प्लीज़ टेल मी विदाउट गेटिंग अशेम्ड. कोई शेम नहीं होती. योर कॉन्सेप्ट हैज़ नो लैंग्वेज. आई ऑलवेज से कि कॉन्सेप्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती. ओके, सो आइदर यू राइट हियर और यू DM मी ऑन इंस्टाग्राम दैट आपके लिए लैंग्वेज बैरियर क्या है. ओके, सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. वन थिंग वील स्टडी अबाउट ई कोलाई बेस्ड प्लाज्मिड्स, देन वील स्टडी अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन फाज, लेमडा फाज को कितना मॉडिफाई करके, व्हाट ऑल मॉडिफिकेशंस, व्हाट यू से उसमें ऑर्नामेंटेशन करके वी कैन यूज लेमडा बैक्टीरियोफाज. थर्ड वन इज क्लोनिंग वेक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. सो व्हेन डू वी यूज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, वहाँ पे जो स्टडी है वो इस डायरेक्शन से शुरू करेंगे कि हमें आखिर में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की ज़रूरत कब पड़ती है, एंड देन वेक्टर्स फॉर अदर बैक्टीरिया. सो माई टीचिंग स्टाइल वुड बी, I'll use as I have done it in earlier unit, as in I think in unit number 5, that I used a black screen. So similarly here also I'll draw whatever I will feel like that is difficult for you to understand, as I am behind the screen. And the thing is, we are studying techniques, so to get the actual hint of what I'm saying, I will use that black screen. Okay, and also this chapter will come in parts. Why? Because I have shortage of time, so I'll not be able to record the entire chapter in the given time. So what I'll do, I'll just divide this chapter into certain segments as to what my time allows. So therefore I will release this chapter into sub parts. So if it becomes difficult or it becomes slightly irritating for you that you have to study it in parts, then I am apologizing from my friend, because I think yes, हमेशा what we love is we need continuity in whatever we study. Okay, so I'm very sorry from my side that this chapter will be coming in some parts, but after that we will resume that in a sense. For example, for chapter number 7, what I'll do, I'll record the entire chapter in one go or in 2 goes. Okay, so let's start. So what the first line says, so I'm assuming that you students are studying with me. Okay, just have your book ready with yourself. You can download it from anywhere. So what the chapter says, that till now in chapter number 3, 4 and 5, we know that what are the basic experimental techniques which are involved in gene cloning. We have read them in chapter number 3, 4 and 5. So now we have seen how DNA is purified from cell extracts. completely बता दिया आपको. contaminants क्या होते हैं, biological contaminants क्या होते हैं, that also I have told you. अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो बैक, चैप्टर्स को पढ़ो. बहुत ईजीली
try to process them and then come back. So how recombinant DNA molecules are constructed in the test tube, how DNA molecules are reintroduced into living cells, and how recombinant clones are distinguished. See how magical it is. You have extracted the DNA which were present in a living cell, then आपने उसको क्या किया, आपने उसको modify किया. Modify भी किस में किया? In a test tube. Then what did you do? आप वहाँ नहीं रुके, you just reintroduced it into the host cell. You manipulated something, you reintroduced it into the living cells, and then you tried to select that whatever you introduced, you wanted to see that only. So that is what selection is. Now we must look more closely at the cloning vector itself as to हमने क्लोन किससे किया था भाई, हमने सारे प्रोसेस फॉलो कर लिए. अब हमें एटलीस्ट वी नीड टू सी कि कौन सा ड्राइवर, कौन सा व्हीकल, कौन सा मैकेनिक, कौन सा गाड़ी, फेरी, वट एवर यू कॉल इट, वेक्टर, कौन सा वेक्टर यूज़ किया था. In order to consider the range of vectors available to the molecular biologist and to understand the properties and uses of each individual type. So what is it saying? It is saying कि you have a plethora, you have a library of cloning vectors available. अब कौन सा cloning vector आप use करते हो for your experiment is a peculiar decision. बहुत बड़ा डिसीजन है ये. अब वो आप किस बेसिस पे लोगे कि आपके कंस्ट्रक्ट का साइज़ क्या है, आपके कंस्ट्रक्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है. तो वही ये चैप्टर बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ करते हो. सो सेकेंड पैराग्राफ सेज कि जो सबसे बड़ी वैरायटी मिलती है आपको क्लोनिंग वेक्टर्स की, वो ई कोलाई में मिलती है एज अ होस्ट जब आप ई कोलाई को यूज़ कर रहे हैं. This is not surprising in view of the central role that this bacterium has played in basic research over the past 50 years. So they are saying कि E. coli कितना ज़्यादा important है हमारे लिए. E. coli has played a very significant role. कहीं भी आप सबसे पहले whatever बैक्टीरिया हम जानते हैं is E. coli. ओके, हम पढ़ते हैं गट में एक बैक्टीरिया होता है in our 6th 7th class, that is E. coli again. तो जो भी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स ऑफ E. coli has meant that virtually all fundamental structures of gene structure and function were initially carried out with this bacterium as experimental organism. See, आज हम पढ़ते हैं as different branches, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बैक्टीरिया को, E. coli को एज अ सब्जेक्ट, एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज़ करके उसमें सारी चीज़ें पता की गई हैं. सो दे आर टेलिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ E. coli. What can happen here? So आपसे कभी ना कभी you can be asked that why E. coli? So these are the reasons why E. coli. Okay. So जब even when a eukaryote is being studied, E. coli is still took for the construction of recombinant genes that will subsequently be placed back in the eukaryotic host in order to study their function and expression. What I will do, I will share this book जो भी मैं highlight करती हूँ in my telegram group. Okay. So the thing is, मैंने highlight इसलिए किया, highlighted portion is much important, underlined portion is less important than the highlighted portion. Okay. So it is saying कि even if you are studying about a eukaryote, आपका जो E. coli है वो as a model organism इतना important है कि you even clone your eukaryotic genes into E. coli sometimes. Okay. So during recent years, gene cloning and molecular biological research have become mutually synergistic. So जब भी you talk about gene cloning, then you of course have to talk about molecular biology because cloning comes under biology. So it is saying that they are mutually synergistic as to they are complementing each other. Breakthroughs in gene cloning have acted as a stimulus to research, and the needs of research have spurred on the development of new, more sophisticated cloning vector. So कितना connected process है और कितना interesting process है कि gene cloning में कोई एक breakthrough मिला, कुछ एक चीज़ बता दी कि ओके फाइन वी हैव क्लोन सो एंड सो जीन, हमने फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन क्लोन कर दिया. अब उसने एक स्टिमुलस दिया, ऑल पीपल दे हैव स्टार्टेड सीइंग और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिसर्च फील्ड. वो सब रिसर्च से एक्सपेक्ट करने लग गए. जैसे ही वो रिसर्च से एक्सपेक्ट करने लग गए, व्हाट हैपेंड, उसकी वजह से डिमांड आई कि न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड क्लोनिंग वेक्टर्स आए. अब जो बच्चे हैं स्फेयर्स, उनको टच करने के लिए वी शुड learn how to exploit what else are the cloning vectors available. Okay, तब आते हैं
कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मोस्टली हम इकोलाई एज अ क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे, उसके स्पेसिफिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस फॉर ईस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स कब जाएंगे, इन चैप्टर नंबर 7. दिस इज चैप्टर नंबर 6 यू रिमेंबर. सो चैप्टर नंबर 7 में हम ईस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स इनके लिए क्या क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं उसे पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन इकोलाई प्लाज्मिड्स. बोर नहीं होना है, पढ़ना है. ट्राई टू टेक द कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट को जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट, आप उसको आत्मसात कर दो, उसको समझ जाओ. देयर इज नथिंग एल्स बिगर देन द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो द सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स एंड दोज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग आर बेस्ड ऑन स्मॉल बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स. ऑलवेज रिमेंबर, सिंपल चीज़ छोटी भी होती है. सो द थिंग इज, अगर आप हायरार्की में शुरू करोगे तो नीचे से ऊपर बढ़ते हो, तो नीचे से ऊपर साइज़ भी बढ़ता है नॉर्मली, विदाउट एनी एक्सेप्शन. अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर साइज़ भी बढ़ता है. तो जो सबसे सिंपल क्लोनिंग वेक्टर है वो सबसे छोटे बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हैं. बहुत सारे प्लाज्मिड्स अवेलेबल है हमारे पास. तो ये प्लाज्मिड्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कंबाइनीज ऑफ प्योरिफिकेशन विद डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, कन्वीनियंट सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स, एंड द एबिलिटी टू क्लोन रीजनेबली अप टू 8 kb, अबाउट 8 kb पीसेज ऑफ DNA. तो हम कब एक वेक्टर को एक अच्छा वेक्टर कहेंगे, जब हमारे पास जिस ऑर्गेनिज्म में उसे डाल रहे हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, आपने ट्रांसफॉर्म किया अपना कोई एक सर्टेन अमाउंट डाला आपने. फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि आपके 10 बैक्टीरिया इस अमाउंट से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपके एटलीस्ट 6 to 70% ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो दैट विल बी हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी. कन्वीनियंट सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स, जो आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं जिसके बेसिस पे आप प्योरीफाई करोगे. जैसे मैंने लास्ट आई हैव टोल्ड यू कि कैसे आप प्लेट से डिस्टिंग्विश करते हो. सो व्हाट आर द कन्वीनियंट सिलेक्टेबल मार्कर्स, जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में डिफरेंस पता चलेगा. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स. अगर आप बहुत सिंपली देखोगे तो अगर मान लो आपने क्लोनिंग की, आपके जो बैक्टीरिया ने आपका जो भी मटेरियल था, जो भी आपने बाहर से डाला, उसे पिकअप किया, राइट. से फॉर एग्जांपल इसने पिकअप किया, दूसरे वाले ने नहीं पिकअप किया. सो दिस वन, बोथ ऑफ देम, अब आप जब प्लेट करते हो तो बोथ ऑफ देम आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, बट ओनली वन ऑफ देम इज रिकॉम्बिनेंट. वन ऑफ देम कैरीज द आउटसाइड DNA. whatever carries the outside DNA is what, recombinant. Okay, and whatever comes in your plate, आपकी प्लेट पे जो ग्रो कर जाता है, that is what, that is your transformant. मतलब वो ट्रांसफॉर्म हुआ है. अब उस ट्रांसफॉर्म हुए में अंदर आपका फॉरेन जीन गया या नहीं गया, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ यही रिक्वायर होता है कि आपका जो फॉरेन जीन जिसमें गया वो आपका रिकॉम्बिनेंट है. ओके, सो आई थिंक रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट की छोटा सा, बहुत देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट. आई गेस वो आपको समझ में आएगा. ओके, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि रीजनेबली लार्ज पीसेज ऑफ DNA मस्ट बी क्लोन्ड. कितना बड़ा साइज बता रहे हैं, अप टू अबाउट 8 kb, यानी कि 8000 बेस पेयर्स उसमें क्लोन हो जाने चाहिए. ओके, सो मोस्ट रूटीन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स मेक यूज़ ऑफ वन और अदर ऑफ दीज प्लाज्मिड वेक्टर्स. जितना भी आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हो ना, वो या तो इन प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं या इन्हीं से रिलेटेड किसी और को. वन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर्स टू बी डेवलप्ड वॉज PBR322. वन ऑफ द फर्स्ट. प्लीज़ डू नॉट गेट मिस्टेकन बाय द फैक्ट कि PBR322 फर्स्ट वेक्टर नहीं था, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट. इफ़ यू विल सर्च, then I think PSC109 or something in the same serial number was the first vector that was developed. Okay, so in the same line came PBR322. So PBR322, इसकी एक स्टोरी है. Why is it called PBR322? P stands for plasmid, BR stands for the authors which have invented this PBR322, which is not an invention basically. It is a modified version of a plasmid of E. coli. So B and R stands for Bolivar and Roderick, who were the authors, and 322 is the order. Say for example, there are so many labs in the departments in which this work of constructing a plasmid going on. तो उसमें से जो सीरियल नंबर पे 322 सीरियल नंबर पे जो आया प्लाज्मिड, उसे बोला गया PBR322 as to
plasmid Bolivar Rodrick 322, okay, which were introduced in chapter 5. Already हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. To illustrate the general principles of transformant selection and recombinant identification. So basically मैंने इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया. Although PBR 322 lack the most sophisticated features of newest cloning vectors. अब PBR 322 को भी रिटायर होना पड़ा. क्यों? क्योंकि अपडेटेड नहीं था. बहुत सारी अभी के हिसाब से लाइक द मॉडर्न टाइम्स, वट एवर द मॉडर्न टाइम्स रिक्वायर एज अ क्लोनिंग वेक्टर इसमें नहीं था, एंड कॉन्सिक्वेंटली इज नो लॉन्गर यूज्ड. It was identified, it was one of the first cloning vector, but it is no longer used extensively in research. Why is it written extensively? Because some of the labs must be using it. तो कुछ labs तो use कर रही है ना, therefore it is called that it is not used extensively in research. It still illustrates very well the important and fundamental properties of any plasmid cloning vector. तो ये जो PBR 322 है, इट इज़ नॉट इन यूज़ दीज डेज, बट स्टिल ये आपको ये बता देता है कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए. सो वी विल therefore begin our study of E. coli vectors by looking more closely at PBR 322. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? PBR 322 के बारे में. What I love the most about T.A. Brown is इसका इतना अच्छा खासियत है दैट एवरी अदर लाइन कनेक्ट्स यू विद द प्रीवियस लाइन. और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी नहीं है. सो आई हैवंट एडेड एनीथिंग, आई विल ऐड बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मुझे नीड नहीं थी. सो द फर्स्ट थिंग इज द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू PBR 322 क्या है, राइट? P stands that this is indeed a plasmid. So anyone can ask you, like I was taking the interview of, as I started the mock interview series for PhDs. So I asked one of the girl that what does PBR 322 stands for. So she was little mistaken that BR stands for the gene from which it was isolated. Not at all. It is, and it was isolated from E. coli only. It is a modification of E. coli plasmid only. So P stands for plasmid, BR stands for Bolivar and Rodrick, the two investigators who developed PBR 322. Please remember Bolivar and Rodrick, they were the authors. 322 distinguishes this plasmid from others developed in the same laboratory. There are also plasmids जैसे PBR 325 आया, 327 आया, 328 आया. So this is the hierarchy. This is the numbers that 327 followed by 328. Say for example आपने कोई plasmid discover किया and subsequently I was also working on discovering a plasmid. मैंने पहले discover कर लिया, तो it will come as Manisha 1 and your will come as, if we are using, it will come as you as a author. Say for example if your name is Poonam, then it will come as Poonam 2. Okay, then comes third one, that is the useful properties of PBR 322. भाई आखिर में लाए क्यों इसको? तो यूजफुल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ PBR 322 गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ वाई दिस प्लाज्मिड वॉज सच अ पॉपुलर क्लोनिंग वेक्टर, राइट? इसका अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे. तो अगर हम मैप देखें, मैप है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में पूरा कैप्शन दिया हुआ है कि जो PBR 322 का मैप है उसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, राइट? आपके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एंड देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या हुई? जिनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्लीव कर सकते हो. SAL1, BAMH1, हिंदी 3, EQR1, SCA1, PU1, PST1. सो अगर आपने थोड़ा भी लैब का एक्सपीरियंस है, यू मस्ट हैव सीन दैट कूलर जिसमें आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, तो आपको एक सूटेबल एंजाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा. बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके ये और ये रेजिस्टेंस में से सिर्फ एक क्लीव हो. अगर दोनों रेजिस्टेंस क्लीव हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, राइट? सिर्फ एक क्लीव होना है. ओके, मूविंग ऑन. तो जो पहला यूजफुल फीचर है आपके PBR 322 का, वो क्या है? वो है इसका साइज़. In chapter 2, it was stated that a cloning vector should be less than 10 kb in size in order to avoid problems such as DNA breakdown during purification. अब आपको chapter 2 में, अगर आपने chapter 2 नहीं पढ़ा है, प्लीज़ पढ़ो जाके, ओके? तो उसमें बताया कि आपका क्लोनिंग वेक्टर 10 kb से बड़ा नहीं होना चाहिए. Why? Because आप whenever you use a cloning vector, see I am saying it a cloning vector, आपको क्या लग रहा है? ये एक गोला है, ये एक प्लाज्मिड है बाबा. आप क्या करोगे? आप अपने बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करोगे इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड नेक्स्ट डे आके सारे प्रोसीजर से आप अपना प्लाज्मिड आइसोलेट करोगे. तो जब आप सेंट्रीफ्यूज में इसको घुमा रहे होगे ना, घूम करके बहुत तेज़ स्पीड पे,
तो शेयरिंग हो सकती है, तो ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर आप जब कॉलम के थ्रू प्योरीफाई करोगे ना, तो कुछ यहाँ पे कुछ चिलेशन हो सकता है, कुछ आपका डीएनए यहीं रह सकता है। तो टू गेट अ हाई क्वालिटी, हाई एंड अ बेटर क्वालिटी प्लाज्मेट, आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है वो 10 kb से छोटा होना चाहिए। ओके, प्लीज़ रिमेंबर 8 kb तक आप क्लोन कर सकते हो और वेक्टर प्रेफरेबली 10 kb से छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब आते हैं आगे इट इज सेइंग कि PBR322 इज 4363 बेस पेयर। 1 kb में कितना 1000 बेस पेयर, तो 4363 बेस पेयर यानी कि 4.363 kb, 4 kb से थोड़ा ज़्यादा 4.3 kb, which means that not only can the vector itself be purified with ease, but so too can any recombinant DNA molecule constructed with it. Even with 6 kb of additional DNA, a recombinant PBR322 molecule still of a manageable size. I hope you understand it. It is saying PBR322 कुछ 4.3 kb का है। अगर वो 4.3 kb का है तो मैंने क्या बोला कि 10 kb तक तो आपको चलेगा कि आपका क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है। तो भी विंडो कितना है 6 kb का, अप्रोक्सीमेटली 6 kb का, तो आप इतना बड़ा जीन इसमें क्लोन कर सकते हो। बस यही लिखा है इस लाइन में। ओके, सो सेकेंड फीचर क्या है जिसकी वजह से PBR322 इतना पॉपुलर हो गया भाई? सेकेंड फीचर बहुत सिंपल है, 2 रेजिस्टेंस जीन्स हैं इसके पास, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कोई भी यूज़ करो आप। ओके, द इंसर्शन ऑफ न्यू डीएनए, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, द इंसर्शन ऑफ न्यू डीएनए इनटू PBR322 दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड विद PST1, PUB1, PVU1 or SCA1 inactivate the ampicillin resistance gene and insertion using any one of the 8 restriction endonucleases। क्या बोल रहा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास कोई भी एंजाइम यूज़ करके क्लीव कर दो। अब जो आपके पास 8 साइट्स हैं, 8 एंजाइम की साइट्स हैं, उनमें से किसी से भी क्लीव करके, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को क्या करेगा, क्लीव कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, आप सेंसिटिव बना देगा, वहाँ पे इंसर्ट करा दो। तो यहाँ पे PBR322 में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने बोल के बताई सारी साइट्स। तो कम से कम 8 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। इनकी वजह से इतनी वैरायटी है रिस्ट्रिक्शन साइट्स की, तो एक नहीं तो दूसरा एंजाइम तो आपके पास अवेलेबल होगा ही। तो आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर सकते हो, सच दैट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंट जीन के बीच में क्लीव करके अपना इंसर्ट डाल देना, इंसर्ट करके रेजिस्टेंस को इनएक्टिवेट करना इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है। ओके, तो PBR322 कैन बी यूज टू क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स विद एनी ऑफ द सीवरल टाइप्स ऑफ स्टिकी एंड्स। जितने एंजाइम की क्लीविंग साइट्स उतने स्टिकी एंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी, जितने स्टिकी एंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी उतना ही नया इंसर्ट डालने की प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड एडवांटेज भी है, यही नहीं रुका PBR322 सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि तीसरा एडवांटेज भी है। तीसरा क्या है? इट इज़ अ रीजनेबली हाई कॉपी नंबर। वेन एवर इट इज़ रिटन रीजनेबली हाई कॉपी नंबर, तो ये होता है कि रिलेटिवली, कब, जनरली देर आर अबाउट 15 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई सेल, बट जो आपका PBR322 है उसमें इस नंबर को, जो कि अभी तक कॉपी नंबर 15 ही था, 15 प्लाज्मिड बैठे हुए होंगे आपके इकोलाई के अंदर, लेकिन जब आपने इसको क्लोरामफेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से, यानी कि आपने अलाउ नहीं किया कि जितना DNA बना रहा है उतने का तो प्रोटीन नहीं बना सकता, जब आपने अलाउ नहीं किया तो आपका ये 15 से नंबर इंक्रीज होके 1000 से 3000 हो गया। तो आपकी क्लोन्ड कॉपीज़ आपको कितनी ज़्यादा मिल सकती हैं? तो देर इज़ रीजनेबली अ हाई कॉपी नंबर, PBR322 का थर्ड एडवांटेज। तो एन इकोलाई कल्चर देयरफॉर प्रोवाइड्स अ गुड यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट PBR322 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप PBR322 मॉलिक्यूल यूज़ करते हो तो आपके पास 3 एडवांटेज हैं। पहली एडवांटेज क्या बताई थी? पहली थी कि साइज़ छोटा है तो बड़ा क्लोन कर सकते हो। दूसरी बताई थी कि 2 रेजिस्टेंट जीन है, एक को इनएक्टिवेट करो, दूसरे में कहीं से भी क्लीव करो और अपना इंसर्ट डाल दो। थर्ड बताई थी कि हाई कॉपी नंबर कर सकते हो बेस्ड ऑन क्या बैकग्राउंड है, राइट? आप प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर यूज़ करो और इसका कॉपी नंबर बढ़ा दो। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करती हूँ। एंड प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये बुक कितना हेल्प कर रही है एंड हाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स आर मेरे से पढ़ने के बाद, लाइक व्हेन आई एम टीचिंग द बुक, कितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही है। एंड अगर कोई मॉडिफिकेशन ऑफ एनी मॉडिफिकेशन, एनी क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन टू इट।
So thank you everybody. Keep studying and we'll meet in the next session.